Hello everyone, and I welcome you all in our new episode of Transform Talks done by Transform Box. आज के हमारे इस ट्रांसफॉर्म टॉक शो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक के ऊपर और बहुत ही बूमिंग एंड द नीड ऑफ एन आवर काइंड ऑफ टॉपिक के ऊपर जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी वैल्यूबल नॉलेज इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स शेयर करने वाले हैं. But before we start with the show, let me introduce myself. My name is Kavita. I am a certified international trainer, mentor, and a co-founder of Transform Box. Along with me, I have a partner, Mr. Vikram Pore, who is a certified life coach and one of the co-founder of Transform Box. Welcome, Vikramji. Thank you. Along with us, we have a today special guest speaker with us, and she is Rutuja Lingampalle. She is a certified international life coach. She is also mentoring people who are aspiring coaches. She is also running her special signature program called She Transforms. और इस program के through she is basically supporting and empowering women and their well-being. So welcome Rutuja in our show. Thank you so much for inviting me. Welcome. So Transform Talk is a creative initiative we have started through Transform Box, जहाँ पे हम privilege and we are so much privileged and we give an opportunity to the experts and experienced professionals, जहाँ पे हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जिससे हम अपने ऑडियंस के साथ कुछ वैल्यूएबल लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज को शेयर कर सके फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स. एंड टुडे इन ट्रांसफॉर्म टॉक्स वी हैव एन इमर्जिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड दैट इज non-traditional career. Non-traditional career is one of the most common topic which we need to discuss and pass the message to the youth who are really in the verge of choosing career in their plan, in their career platform. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो लाइफ हम जी रहे हैं that is in digital era. We are living the life of digital era जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं. And with the change of technology बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में बदल चुकी है. And same it is impacting in terms of career also. तो अगर हम पहले की बात करें तो हमारे लाइफ में या हमारे पूर्वजों के टाइम से ही जो हम करियर ऑप्शन चूज करते आ रहे हैं that was only very monotonous kind of thing like जॉब या फिर एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते आ रहे थे. लेकिन आज हमारे लिए जो करियर ऑप्शंस है वो बहुत वाइड हो चुके हैं. People are exploring lot of different sectors. People are exploring lot of different platforms to emerge with their skills and personality. In that, there is a platform what we have given the name called non-traditional career, जहाँ पे हम अपने जो पुराने मिथ है कि we have to go only for some professional jobs and some traditional business, यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं अपने स्किल और टैलेंट के बेसिस पे न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए कैसे वो मल्टीपल चॉइस ऑफ ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल करियर को चूज कर सकते हैं. तो इस टॉपिक पे हम और भी ज्यादा एलिब्रेट फॉर्म में बात करने वाले हैं विद आवर एक्सपर्ट गेस्ट रुतुजा लिंगमपल्ले. सो विक्रम पोरे, हैंड ओवर टू यू टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Thank you, Kavita ji. Welcome, Rutuja. Rutuja, yeah. How would you like to define this non-traditional career? I would like to define non-traditional career as where there is no set path as to this is the step 1, step 2, step 3, जिसका कोई set path नहीं है. जैसे अगर हम traditional degree careers को देखें जहाँ पर आपको पता है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ऐसे कुछ बनने वाले हो, तो आपको पता होता है कि पहले ये डिग्री करनी है, फिर आपको यहाँ इंटर्नशिप करनी है, फिर जॉब मिलेगा. सो इवन इन द फील्ड ऑफ डॉक्टर्स और लॉयर्स somewhere the path is set. तो नॉन ट्रेडिशनल करियर इज एनी डिफरेंट करियर वेयर यू टेक अ स्किल सेट जो आपके अंदर है और आप कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल बनाते हो जो किसी और को सर्व करता है, किसी की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. एंटरप्रेन्योरशिप के अम्ब्रेला के अंदर जैसे बिजनेस में भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं और कुछ न्यू इमर्जिंग बिजनेस है जो हम आजकल में देख रहे हैं, राइट. तो वो नीड ऑफ द आवर है और वो देख के जो हम करियर्स बना रहे हैं वो मेरे हिसाब से नॉन ट्रेडिशनल करियर्स है जो आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे. ओके, और अभी इसका रिलेवेंसी क्या है, मतलब आज के जमाने में इसका रिलेवेंसी क्या है? सबसे बड़ा इसका रेलिवेंस और नीड ये है कि जो मोनोटोनस जॉब है या जिसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 डिसाइडेड है
those jobs are going to be taken care by artificial intelligence, या फिर we are going to program them or give it to a machine instead of humans doing it. This is going to make humans to go beyond their potential and to think creatively. तो अगर even if you are an engineer, you would be forced to think unconventionally. आपको out of the box जाके engineering करनी पड़ेगी चीजों की. तो हर एक जो करियर है वो कहीं ना कहीं आपको एक नॉन ट्रेडिशनल वे में सोचने के लिए मजबूर करने वाला है. सो दैट आई थिंक इज द रेलेवेंस ऑफ नीड ऑफ द आवर. कोई भी बड़ा एम्प्लॉयर यही बोलेगा कि अगर ये काम मशीन से हो सकता है और कम पैसे में हो सकता है जो मुझे एक ह्यूमन को सैलरी देनी पड़ेगी, तो दे विल प्रेफर टू यूज मशीन्स ओवर देयर. बट जहाँ पे एक इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है, जहाँ पे एडवर्सिटी कोशेंट की जरूरत है, बिकॉज everything is going to become uncertain. We are already seeing that uncertainty. वहां पर जाकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है this is going to play a big role. ओके, और आप ये बता सकते हैं अलग अलग टाइप्स के नॉन ट्रेडिशनल बिजनेसेस कौन से हैं जो अभी इमर्जिंग है? अगर स्टार्ट ही करें तो हम लोग जिस फील्ड में है लाइफ कोचिंग, ये भले ही कोचिंग टीचिंग एक टाइम बहुत टाइम से चला आ रहा है, स्पेशली एशियन कल्चर्स में, इंडियन कल्चर में गुरुकुल जैसा सिस्टम होता था कि एक स्पेसिफिक टाइप का आर्ट सीखने के लिए आप एक टीचर के पास जाते थे, या फिर अपने यहाँ पे ऐसा था कि इस पर्टिकुलर लाइफ के जर्नी में आपको ये पर्टिकुलर गुरु हेल्प करेंगे. बट आज के जमाने में वो थोड़ा सा चेंज होने लगा है. जैसे हमें लोगों को ये सिखाना पड़ रहा है अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, अपनी वेलबींग की तरफ कैसे ध्यान देना चाहिए, और ये एक होलिस्टिक व्यू में करना जरूरी है, क्योंकि ये अवेयरनेस बढ़ती जा रही है दैट वी आर नॉट जस्ट सेटिस्फाइड विथ काम करना, घर वापस आना, आराम करना और फिर काम करने जाना. पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि व्हाई एम आई गोइंग टू वर्क. तो जो लाइफ में एक मीनिंग होना चाहिए उसकी नीड बढ़ती जा रही है और लोग अवेयर होते जा रहे हैं. तो यहाँ पे लाइफ कोचेस का बहुत बड़ा रोल आता है कि जहाँ पे वो पर्सन अपने आप को लिमिटेड फील कर रहा है या फिर उसको अपने पोटेंशियल को देखने में उन्हें समझ नहीं आ रहा है, एक्शन क्या लेना है वो समझ में नहीं आ रहा है, टू सिट विद देम and become the co-creator of their success. I think this is one of the non-traditional careers जो हम experience कर रहे हैं. सेकेंड इज वो सारे बिजनेसेस जो कोई क्रिएटिव फील्ड से आते हैं. जैसे हम देखते हैं कि पहले हमारी मम्मीज आंटीज कोई भी मतलब घर में उनका कोई हॉबी होता था, जैसे निटिंग हो गया, वुलन के कपड़े बनाना हो गया या खाना बनाना हो गया. वो अभी वो क्लाउड किचन सेटअप कर रहे हैं, वो अपना ट्रेडिशनल लोकल खाना किसी वे में सेल कर रहे हैं. वो जो छोटे छोटे वुलन के सामान बनाते थे वो किसी वे में D2C में सेल हो रहा है. कुछ भी मतलब मिनिएचर टॉयज जो पहले सिर्फ महाराष्ट्र में वुडन टॉय सिर्फ सावंतवाड़ी और वो एरिया में होते थे, अभी जो वो हैंडक्राफ्ट बन रहा है वो ज्यादा वे में जा रहा है. तो ये एज अ हॉबी लोगों के पास बहुत टाइम से है और हमारे कल्चर्स उसे संभाल के भी रखते हैं. बट क्रिएटिंग दैट इनटू अ बिजनेस, इंटरनेट ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है. और ये कुछ एग्जांपल्स है जो मेरे सामने तुरंत आते हैं. और कम्युनिटी को सर्व करने के अलग अलग तरीके, जैसे कम्युनिटी किचन्स हो गया, कोई टाइप की सोशल सर्विस हो गई, या फिर अपना कुछ ऐसा करना जिससे आप चैरिटी ज्यादा कर सकते हो. पहले कम्युनिटी सर्विस, सोसाइटी के लिए काम करना मतलब सिविल सर्विसेज के 2-4 ऑप्शंस होते थे. दीज करियर्स आर ग्रेट, ट्रेडिशनल करियर्स बहुत अच्छे हैं, बट हमारे पास क्राउड इतना ज्यादा और पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि 4-5 ऑप्शन सस्टेन नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में. इसीलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स मेरे सामने है जो आते हैं तुरंत. वेरी गुड. और एक मुझे सवाल आता है मेरे दिमाग में, अभी सपोज कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तो उसके सामने ना एक करियर पाथ है, वो खुशी से आके वहां पे चला जाता है और उसे मालूम है कि उसे एट द एज ऑफ 58 उसको रिटायर होना है और वो एकदम आनंद से रिटायर हो जाता है. लेकिन जो अभी हम नॉन ट्रेडिशनल चीज के बारे में बातें कर रहे हैं, तो रिस्क है क्या? मुझे तो लगता है कुछ बड़ी रिस्क हो सकती है. आपको क्या लगता है? काफी बड़ी अमाउंट ऑफ रिस्क है जब भी आप कुछ ऐसा करते हो जिसमें स्पेक्यूलेशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपको बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स लेने होते हैं और आपको खुद का पाथ बनाना होता है. जैसे अगर एक एग्जांपल दूं तो स्टॉक मार्केट, वी नो देयर इज अ हाई रिवॉर्ड, बट ये भी पता है कि हाई रिस्क है. बट उसको लेकर जैसे ही किसी ने जो भी डेटा एनालाइज किया, स्पेक्यूलेशंस किए, तो हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स है जो हमें उसमें गाइड करते हैं. वैसे ही जो करियर कोचेस होते हैं या फिर जो आपको ये मदद करने में हेल्प करते हैं, ये ढूंढने में कि आपका पोटेंशियल किस चीज में है.
रिस्क तब बहुत ज्यादा होता है जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसका आपके अंदर ना तो पोटेंशियल है ना ही आपको एक्सपीरियंस है। तो रिस्क को सबसे पहले मिनिमाइज करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप आपकी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हो, यू आर ऑलवेज ऑन द विनिंग एज। मतलब आइदर आप सीखते हो कि इस स्ट्रेंथ को मैं मोनेटाइज कैसे करूं, या फिर ये सीखते हो कि इस स्ट्रेंथ से मतलब मैंने क्या गलत किया और मैं इसको एक प्रोडक्ट मार्केट फिट में कैसे चेंज करूं, मेरी स्ट्रेंथ को एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं ताकि मुझे उसके बदले में पैसे मिलने लगे। सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क ही होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग से आपका पाथ होता है वो आपने बहुत केयरफुली डिसाइड करना चाहिए, किसी की मेंटरशिप के साथ करना चाहिए, ताकि आपके लिए वो जो जर्नी है वो एंजॉयबल भी हो और जो रिस्क है आप उसको मिनिमम करो। बट उसका जो रिवॉर्ड है वो अगेन सेम द स्टॉक मार्केट थिंग, उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है कि आपको आपकी हॉबीज के थ्रू पैसे कमाने मिलते हैं, अपनी लिविंग बनानी और थ्राइव करने मिलता है। ये ऑफ कोर्स उसमें इन्वॉल्व है। ओके। अगर Yes. किसी को ये ऑप्ट करना है नॉन ट्रेडिशनल करियर, तो तैयारी कैसे करनी चाहिए उसको? पहले तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनके 11-12, जैसे अगर हम इंडियन लोगों की बात करें, 11-12 में लोगों को चुनना पड़ता है कि क्या करने वाले हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स करने वाले हो, किसी और फील्ड में जाने वाले हो। तो उस टाइम पे अगर पेरेंट्स की साइड से या आपके घर का फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे हैं, आपको वहां सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज द बेस्ट एज टू डिटरमाइन। क्योंकि अभी मैं देखती हूँ लोग फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, ये सारे कोर्सेज 11-12 से ही लेने लगते हैं, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बट कहीं अगर आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या फैमिली को लगता है कि ये बहुत डाइसी है, पता नहीं हमारा बच्चा क्या कर रहा है, विच इज अ जेन्युइन कंसर्न, हम बोल नहीं सकते कि वो गलत है उस पॉइंट पे, दे आर एब्सोल्युटली राइट। उस टाइम पे आपको जो भी लगता है कि एक ट्रेडिशनल डिग्री है जो आपको एक स्टेबिलिटी दे सकती है, आप उसको परस्यू कर सकते हो एज अ बैकअप ऑप्शन। और साइड बाय साइड यू नेवर गिव अप ऑन योर हॉबीज। क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा ये जो है कि मुझे कम्युनिटी को बहुत पावरफुली सर्व करना है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, ये मुझे मेरे कॉलेज ईयर्स में पता चला। तो जो 11-12 या वो एज होती है ना, इट इज नॉट दैट मैच्योर्ड कि आप लाइफ टाइम का एक नॉन ट्रेडिशनल करियर का एक फिक्स डिसीजन ले सकते हो। तो आपके सामने अभी जो पॉसिबिलिटी है उसको उठाओ, और जो आप करना चाहते हो उसको एक टाइम के लिए परस्यू करके देखो कि आपके लिए वो कैसे वर्क करता है। और जब आप देखते हो कि हाँ मुझ में अभी कॉन्फिडेंस आ गया है, फिर आप आपका जो भी रिक्वायरमेंट है फाइनेंसेस का, उसको सेव करके रखो, आइदर थ्रू सेविंग्स, या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो कॉलेज में, किसी वे में एक अमाउंट जमा करो, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता बिजनेस को जस्ट स्टार्ट करने के लिए या कोई नॉन ट्रेडिशनल करियर में जाने के लिए। आपको स्टार्टिंग में बहुत बड़ी अमाउंट नहीं लगेगी, बट जो भी लगेगी मेक श्योर इट इज योर ओन। क्योंकि जब आपकी वो खुद की होती है ना, यू पुट सच अ लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं आप पेरेंट्स से भी ले सकते हो, बट पेरेंट्स से लेने के बाद आपका एटीट्यूड बहुत अलग होगा, और जब आप वो खुद की हिस्से करते हो और आपका एटीट्यूड बहुत अलग होगा। एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दैट। और ये एक लॉन्ग जर्नी है, आपको जाते जाते पता चलेगा कि आपके लिए क्या चीजें वर्क करती है। तो इसमें जितना फाइनेंस का रोल है उतना माइंडसेट का भी रोल है। तो आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग दिखेंगी, आपके फ्रेंड्स किसी और चीजों को ज्वाइन कर रहे होंगे, करियर्स को, दे वुड बी थ्राइविंग इन देम। आपको पता होना चाहिए कि आप एक विजन को बिल्ड कर रहे हो और उसके लिए आपको टाइम लगने वाला है। तो आई थिंक ये दो चीजें हैं जो बहुत मैटर करती है। बढ़िया बढ़िया। आपने अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, माइंडसेट। मेरे ख्याल से कविता जी, आप कल मेरे से डिस्कस कर रही थी कि नॉन ट्रेडिशनल जो करियर है उसके अंदर माइंडसेट का रोल क्या है, तो आप मेरे ख्याल से पूछ सकती है क्वेश्चन। यस डेफिनेटली, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक कि हम नॉन ट्रेडिशनल करियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एज यू नो कि हमारा जो माइंड है ना, जो जनरेशन से चलता आ रहा है रिलेटेड टू करियर, तो ऑलरेडी इट इज फिक्स्ड राइट, कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एजुकेशन लेनी है, डिग्रीज लेनी है, एंड देन वी हैव टू जंप टू द जॉब और बिजनेस। लेकिन अगर हम नॉन ट्रेडिशनल करियर में अगर हम शिफ्ट होना चाहते हैं, ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट वी नीड ओके इन यूथ, okay, so that they can decide that yes, I should go for my own choice of following my passion or following my hobbies. So what you will say on this, that what kind of mindset or belief we require if we have a mindset to go for the another kind of career, choosing the another kind of career which is not yet followed by a lot of people. So what you will say in this?
देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने माइंडसेट की होनी चाहिए. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द एक्सप्लोरेटरी माइंड, वेयर यू आर ओपन टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज. क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज अगर हमने डिसाइड कर लिया, ओके मुझे अपने हॉबी से एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसे कमाने हैं, बट आप एक ही बात पे स्टिक हो गए जो कि आपके लिए बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, सो यू आर गोइंग टू बर्न अ लॉट ऑफ मनी इन दैट बिजनेस. तो आपको वो टाइम फ्रेम डिसाइड करके वो एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. तो पॉसिबिलिटीज वाला माइंडसेट और वो बहुत जरूरी है. सेकंड जो इसको जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट इज द माइंडसेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन. आपको पता होना चाहिए कि मैं इस ड्यूरेशन के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम और पैसे इतने तक के ही है. जब आप ऐसे काम करते हो बेस्ड ऑन रियल वेरिएबल्स, जैसे टाइम एंड मनी आर द 2 वेरिएबल्स इसमें सक्सेसफुल होने के लिए, तो आपका माइंडसेट जब वैसा बन जाता है ना कि ओके ये रिस्क है, जो रिस्क मैं अभी बेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इससे ज्यादा रिस्क मुझसे बेयर नहीं होगा. आई माइट जस्ट फील लाइक अ लूजर, या बहुत बड़ा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इसकी वजह से. तो उतने लेवल तक नहीं गिरना है, उतना रॉक बॉटम हिट नहीं करना है, वहीं तक रॉक बॉटम हिट करना है जहां से बाउंस बैक करना आसान है. तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत जानने में, और ये दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं. लोग एक एक्सट्रीम में बहुत ज्यादा भाग जाते हैं, आइदर दे आर टू मच इन द डिसिप्लिन, पॉसिबिलिटीज ट्राई नहीं करेंगे, या पॉसिबिलिटीज के पीछे इतना भागेंगे कि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ना बिजनेस का, ना ही उनके सेल्स का, ना ही किसी भी चीज का. तो ये बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी डिमांड करता है, और वो मैच्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी जब आती है, आई थिंक तभी कोई ऐसा करियर परस्यू कर सकता है. Yes, of course. Related question. I have a related question for this. जैसे कि अभी क्या है कि हम माइंडसेट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मे बी सपोज इफ आई एम अ पर्सन एंड आई वांट टू चूज अ नॉन ट्रेडिशनल करियर, लेकिन होता है ना ऐसा दैट समटाइम व्हाट विल हैपन दैट your environment will not support. Environment in the sense people around you or parents or your maybe friend circle, they are they are stopping you to choose the things because they feel that it has high risk, या फिर आप करोगे आप सक्सेस नहीं होगे, देन यू विल फील डिमोटिवेट, मींस दे थिंक ऑफ द नेगेटिव रिजल्ट्स डायरेक्टली, और वो कहते हैं कि नहीं बेटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, व्हाट एवरीवन इज डूइंग. तो वैसे कंडीशन में अगर हम यूथ को एक मैसेज देना चाहें कि हाउ टू स्टिक विद देयर डिसीजंस, और क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जिसपे वो काम करे, सो दैट दे कैन गेट अ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस कि यस आई शुड गो फॉर the things what I really want to do along with my whatever career they are doing, and if they want to follow non-traditional career also. मैं खुद स्टूडेंट्स के साथ बहुत बात करती हूँ, तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्सटर्नल वैलिडेशन की हमें बहुत ज्यादा आदत है. मैं उस टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ. इलॉन मस्क को जब पेपाल बनाना था, स्पेसएक्स बनाना था, टेस्ला करना था, तो उन्हें बहुत कम लोगों को सपोर्ट था बिकॉज ये प्रोग्रेसिव और रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे. तो Correct. जो लोग विजनरी होते हैं ना, उनको ही ये दिखता है. तो अगर आपका वो कन्विक्शन है अपने बिजनेस में और आपको वो दिखता है, तो यू शुड गो हेड, नो मैटर आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना सपोर्ट नहीं मिल रहा है. जैसे अगर आपके पास अभी बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी है और टाइम भी शायद बहुत कम होगा क्योंकि आप अपना जॉब भी करते हो, तो अगर आप आधा घंटा 1 घंटा भी रोज काम कर सकते हो उस पे, तो वो करना जरूरी है. क्योंकि जब ये यूनिवर्स देखता है, जब सोसाइटी देखती है कि कितनी भी मुश्किल हो, ये पर्सन तो रोज काम करता है, ये लड़की तो रोज वीडियो बनाती है, ये तो रोज अपने लिए मेहनत करता है, आपको आसपास के लोग सपोर्ट करने लगेंगे. लीडर होने का, विजनरी होने का मतलब ही ये है कि आपको बहुत कम सपोर्ट मिलेगा इनिशियली. सेकंड, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और पेरेंट्स की जो कंसर्न्स होते हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके पेरेंट्स जो भी सोच रहे हैं आप ऐसा करो. ये समझो कि पेरेंट्स का रूट रीजन क्या है. वो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ड्रीम्स में कॉम्प्रोमाइज करे. हर पेरेंट चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छा करे. उनका बस यही कंसर्न है कि बेटा तुम खाओगे क्या, व्हाट आर यू गोइंग टू ईट, डू यू हैव दैट काइंड ऑफ इनकम कमिंग. तो जब भी आप कोई नया बिजनेस प्लान बनाते हो या ये, तो पेरेंट्स को अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्व करो, उनको एक एक्सेल शीट बना के बताओ कि आपके बिजनेस का इनफ्लो आउटफ्लो कैसा होने वाला है. आप अगर रैंडम हवा में बातें करोगे, इंडियन पेरेंट्स स्पेशली, वो लोग नहीं मानेंगे. वो लोग स्मार्ट है, उन्हें पता है कि हवा में बातें करना क्या होता है. एंड रोज मेरा बच्चा काम करता है, रोज मेरा बच्चा इतने एफर्ट्स ले रहा है, वो एक्सेल शीट दिखाओ जिसमें आपका इनकम है मंथली, भले ही बहुत कम हो, बट जब अपने पेरेंट्स भी देखते हैं ना कि बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, तो वो एटलीस्ट इमोशनल सपोर्ट तो प्रोवाइड करते ही है.
और हमने भी उस चीज का मतलब ना अपने ड्रीम्स का जो बोझा है वो अपने पेरेंट्स पे कम से कम डालना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि एक एज के बाद हम इतने केपेबल हो जाते हैं कि अपने लिए कमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जब तक आप आपके हॉबी से नहीं कमा रहे हो, जिस भी वे में कमा सकते हो वो सेविंग्स कर लो जितनी आपको रिक्वायर्ड है, वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, और आगे बढ़ो, ये मेरा कहना है। यस ऑफ कोर्स, ग्रेट आंसर। डेफिनेटली अगर हम अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा करियर ऑप्ट करना चाहते हैं जो कि दैट इज इन डिमांड राइट नाउ, बट हमें पता है कि उसमें मे बी इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो, इट विल टेक सम टाइम टू जनरेट मनी, बट पता है कि वी आर ऑन राइट पाथ, वी विल गेट द रिजल्ट्स, बट बाय दैट टाइम वी हैव टू कन्विंस पेरेंट और आवर सेल्फ ऑल्सो कि हाँ मैं आई एम ऑन द राइट पाथ, और अगर मैं अपने डेली शेड्यूल का कुछ टाइम वहां पे एफर्ट कर रहा हूँ तो इट विल बेनिफिट मी इन द कमिंग टाइम डेफिनेटली। तो वो माइंडसेट और वो डिसीजन एबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए, एंड अ पेशेंस लेवल आल्सो व्हाट आई बिलीव, राइट। ओके, दैट्स ग्रेट। सो वन मोर थिंग दैट आप अभी 2 स्पेशल प्रोग्राम्स करते हो एज ए कोच, राइट, एंड वन ऑफ दैट इज सी ट्रांसफॉर्म and one is evolve into a coach. So will you elaborate little about these 2 programs? Like what kind of information or what kind of service you are providing through this program, and how people are taking benefit from this? तो शी ट्रांसफॉर्म्स एंड द सेल्फ लीडरशिप एकेडमी, ये फ्री, ऑलमोस्ट लाइक फ्री कम्युनिटी सर्विस है। Women are welcome to join She Transforms community, which is a WhatsApp group, जहाँ पे हर मंथ फॉर सेल्फ हीलिंग, फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट और विमेन वेलनेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उस पर हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। वी टॉक अबाउट प्रैक्टिकल एक्शनेबल्स, और हम सब लोग एक दूसरे के लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। वहाँ पे हर एज ग्रुप की विमेन आपको मिलेगी, तो कहीं पे कुछ जूनियर सीनियर्स को सिखा रहे, कुछ सीनियर्स जूनियर्स को, तो वो एक कम्युनिटी सर्विस जैसा है। और इवॉल्व इनटू अ कोच एस्पायरिंग ट्रेनर्स एंड कोचेस के लिए, या फिर somebody who wants to increase their client base using the power of social media organic growth। तो जो जर्नी होती है इनिशियली, जैसे मैंने कहा किसी भी नॉन कन्वेंशनल करियर की, वो स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, वैसे ही लाइफ कोच बनने में भी है। तो मैं मदद करना चाहती थी दूसरे लोगों की जो इस जर्नी में आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी पाथ डिसाइडेड नहीं है। तो वही माइंडसेट पर और स्ट्रैटेजी पर दोनों में काम करने में मैं उनकी मदद करती हूँ एज अ मेंटर। तो ये मेरे 2 सिग्नेचर प्रोग्राम्स हैं। सेल्फ लीडरशिप एकेडमी में इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर मंथ में एक बार फ्री वर्कशॉप होता है, जहाँ पे आकर आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। कोई टॉपिक होता है लीडरशिप स्किल्स से रिलेटेड। तो सेल्फ लीडरशिप का मतलब है कि अपने आप को सही डायरेक्शन में लीड करना, और वो लोग कैसे कर सकते हैं ये मैं अपने वर्कशॉप्स के थ्रू उन्हें बताती हूँ। और अभी तक ये इनिशिएटिव्स बहुत सेटिस्फाइंग रहे हैं मेरे लिए। तो जो भी लोग इनका एडवांटेज लेना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम। Wow, that's great, wonderful. अच्छा ऋतुजा, आपने अभी एक बात कही कि जो आप क्लाइंट बेस इंक्रीज करना चाहते हो ऑर्गेनिक ग्रोथ से, और मैंने आपको सुना भी है कि पेड़ के बारे में आपका ख्याल थोड़ा अलग है, वो ऐसा क्यों है? सर मुझे लगता है या पेड डिजिटल मार्केटिंग और पेड एडवर्टाइजेस D2C के लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग टूल है। बट ये किसके लिए मार्केटिंग टूल है? जिनके पास वो एडवर्टाइजिंग बजट है। और मैंने क्या बोला कि जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास बहुत लिमिटेड बजट होता है, तो वो बजट में आप क्या क्या करोगे? आप सर्टिफिकेशन भी करोगे, आप एड्स भी रन करोगे, और आपको ये पता ही नहीं है, आप रूट्स तक गए ही नहीं हो ये समझने के लिए कि आपके टारगेट ऑडियंस का प्रॉब्लम क्या है। जो ये बड़ी बड़ी एड चलाने वाली कंपनीज है, इन्होंने कई हजारों रुपए मतलब इन्वेस्ट किए हैं इन डूइंग द मार्केट रिसर्च, तब जाके उन्होंने वो एड चलाई है। ऐसे ही वो एड नहीं चलती। और हमें क्या लगता है कि एड चलाने से हमारे पास लोग आ जाएंगे, जब तक आप रूट तक समझते नहीं हो, आपको लोग आपसे इंस्पायर नहीं होते। आपकी कन्विक्शन आपकी आवाज में होती है, आपके बात करने के तरीके में होती है। और जब वो लोगों को दिखती है, जब आप वो 1-on-1 क्लैरिटी कॉल्स करते हो लोगों के साथ, आपका दिल से जो मैसेज दिल तक पहुंचता है, उसका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, और ये एवरग्रीन है। भले ही जमाना कितना भी चेंज हो, ये कभी कोई आपसे ले नहीं सकता, ये क्वालिटी। इसीलिए मुझे ऑर्गेनिक ग्रोथ लगता है कि इनिशियली आपने काम करना चाहिए। आपके पास एडवर्टाइजिंग का बजट आ गया, मार्केट रिसर्च का आ गया, फिर आप कर सकते हो। दैट इज माय टेक ऑन ऑर्गेनिक रीच। बढ़िया बढ़िया।
मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि ऋतुजा इज अगेंस्ट पेड थिंग, लेकिन आज क्लियर हो गया कि शी इज वो बता रही है कि पहले ऑर्गेनिकली रीच करो, आपके क्लाइंट के थ्रू वन एंड वन बात करके एक कांटेक्ट बनाओ और फिर देन यू कैन गो फॉर द एडवांस थिंग. गुड. And that is Exactly. also Yes. important, I think, to build relations and to build a trust with the market. That also works better when we reach people organically through any Yes. medium, platform. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग जो होता है क्लाइंट के साथ और जो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होता है. व्हाट वी गेट फ्रॉम द पेड लीड्स और पेड जो हम लोग लाते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, और जो हम ऑर्गेनिकली रीच करते हैं, जहां तक लोगों तक हम पहुंच पाते हैं, दैट हैज सो मच डिफरेंस. Yes, ma'am, Right. that's. और Yes. लाइफ कोचिंग ऐसा करियर है ना, उसमें रिलेशनशिप और ट्रस्ट का बहुत बड़ा रोल है. सो इट इज Yes. लाइक वन कॉन्वर्जेशन दैट विल बिल्ड योर रिलेशनशिप, और लोग आपको देखते रहते हैं आपके प्लेटफॉर्म्स पे, और Correct. फिर जाके वो आपकी किसी चीज को साइन अप करते हैं. Sign बट up जब करते वो हैं. आपके साथ काम करते हैं और आपको जो रिजल्ट्स देखने मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में, वो बहुत मार्वलस होते हैं. Yes. बढ़िया ऋतुजा. मैं जस्ट समराइज करना चाहता हूँ आज अपने डिसीजन को, अपने डिस्कशन को. तो सबसे मेन चीज जो आती है वो फॉलो योर ड्रीम, राइट. दूसरा चीज है फॉलो योर ड्रीम विथ अ ग्रोथ माइंडसेट. यस और सर. आपने ये भी बताया है कि जो चालू करना चाहते हैं वो शुरुआत से, मतलब वेरी यंग एज से शुरुआत करें. और स्कूल्स में अगर आपको कुछ आपके दिन में से हार्डली 1 घंटा भी अगर आप निकल पाए आपके पैशन को आगे लेके जाने के लिए, तो वो आगे लेके जाए. तो ये एक बहुत अच्छा टेक अवे है अपने यंग जो जनरेशन जो अभी, ये मेरे ख्याल से ये नॉन ट्रेडिशनल करियर ही आगे का मेन स्ट्रीम होने वाला है. हर लोग अलग 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 चीज में जाने वाले हैं और एक्सपर्ट्स बनने वाले हैं. हमारे टाइम जैसे हम इंजीनियर बन गए तो बस वो सब लोग इंजीनियर की तरह ही जाते थे, डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर की तरफ ही जाते थे. तो ऐसा ना होते हुए, तो ये बहुत अच्छी चीजें आपने बताई. और दूसरा एक बहुत अच्छा चीज आपने जो बताया वो है रिस्क. रिस्क लेना ही चाहिए है अगर आपको आगे बढ़ना है. और जो कैलकुलेटेड रिस्क है वो ऐसा कोई कैलकुलेटेड रिस्क होता नहीं है. रिस्क रिस्क होता है. वो आपको ठीक से संभाल के वो जाना, आगे बढ़ना है तो वो लेके आपको आगे बढ़ना ही होगा. ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर रिस्क नहीं है. रिस्क सब में होता है. और कैलकुलेटेड रिस्क ये बहुत ही गलत शब्द है और ओवर उसको ये किया गया वर्ड है. लेकिन रिस्क लेके ही हमको आगे बढ़ना है. तो थैंक यू ऋतुजा, आज आपने आपका कीमती समय हमारे लिए निकाला और ये बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स हमको दिए हैं. और आइंदा भी हम आपको अलग अलग टॉपिक के साथ वी विल इनवाइट यू. और हमें मालूम है कि यू विल बी हैप्पी टू कम ओवर हियर अगेन. यस, आई रियली ट्रूली एंजॉयड. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे इंसाइट्स थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, और मुझे बात करने में बहुत मजा आया. आई वुड लव टू कम इन फ्यूचर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. Thank you so much, Rituja, for making this session a wonderful session. Thank you.